ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ اب مجھے اس میں سے گزر رہی ہے جس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ٹھنڈا تھا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں خود بخود تناؤ سے آزاد تھا اور میں رونے کے لیے تیار نہیں تھا لیکن اس نے اجازت دی لیکن اس نے مجھے کنٹرول میں رہنے کی اجازت دی تاکہ میں کنٹرول میں رہ سکوں لہٰذا اگر دونوں لوگ قابو سے باہر ہیں تو آپ کو امید نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ شادی میں آپ کو اب بھی امید ہے کیونکہ یہ بہت ہوتا ہے لیکن آپ کو دنیا میں اس بحث سے گزرنے کی امید نہیں ہے یہ صحیح ہے ایک مہذب وقت میں اور مہذب طریقے سے کیونکہ آپ میں سے کسی کو مہذب رہنے کی ضرورت ہے لہٰذا وہ اب بھی قابو سے باہر ہو سکتا ہے لیکن اس نے مجھے دیا لہٰذا جب اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے تو مجھے اپنے پاؤں لگانے پڑتے ہیں آپ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں لیکن میں اپنے پاؤں رکھ سکتا ہوں اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں چلو یہ صحیح ہے اور میں ان لوگوں کی مدد کرنے میں کامیاب رہا جو طلاق یافتہ ہو رہے ہیں طلاق پانے والے افراد شادی کے ذریعے ان کے خاندانوں کو الگ تھلگ کر دینا اس کے ذریعے ان کے راستے سے لڑتے ہوئے میں کاس ہوں میں کیتھرین ہم ہوں ہم اپنی زہریلی شادی کو بچانے کے لیے جہنم کی گہرائیوں سے واپس آئے ہیں ہم مورو شادی ہیں آئیے طلاق کے اعداد و شمار کو نئی شادی کے ساتھ پلٹتے ہیں ٹھیک ہے دوستو جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ ہم اپنا نیا پوڈ کاسٹ بنا رہے ہیں لہٰذا یہ چوتھی قسط ہے اور آج ہم عدم تحفظ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اور میں اسے کس طرح عدم تحفظ کا افریت کہتا ہوں جو آپ کو پکڑتا ہے اور یہ آپ کے خاندان کو الگ کر دیتا ہے کیا آپ کو وہ دن یاد ہیں جب میں اتنی غیر محفوظ چھوٹی کتا تھی میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو اب پکڑنا ہے میرا مطلب ہے کہ میں نے یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو اب پکڑنا ہوگا میرا مطلب ہے کہ میں نے کافی مردوں کے ساتھ کام کیا ہے تاکہ یہ جان سکوں کہ وہ عدم تحفظ سے صرف اس وجہ سے جدوجہد کرتے ہیں کہ ان کی بیوی انہیں نہیں چاہتی ہے لیکن پھر ماضی کے تعلقات ہیں اور ہر طرح کے تعلقات ہیں ان مسائل کے بارے میں جن سے اب کسی رشتے میں دھوکہ دہی کی وجہ سے جدوجہد کرتے ہیں لیکن بہت سی عدم تحفظ بھی ہے جو صرف اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ اب بچپن میں کون تھے اور اب کے والدین اب سے کس طرح محبت کرتے تھے اور یا نہیں کیا تم سے محبت نہیں کی میرا نام کاس اور میرا ہے والدین ویسے بھی ہاں تھے لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی سمجھنے کے لیے واقعی اہم ہے عدم تحفظ آپ کو پکڑ لیتا ہے آپ کو مضبوطی سے پکڑتا ہے اور یہ آپ کے لیے آپ کے فیصلوں کا حساب لگاتا ہے اور یہ کیوں اہم ہے ٹھیک ہے کیونکہ جس لمحے آپ عدم تحفظ کو فیصلہ کرنے دیتے ہیں کہ آپ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہیں نہیں جاتے ہیں میرا مطلب ہے اور بنیادی مثالیں ہیں ارے بچے جیسا کہ اب جانتے ہیں کیتھرین فون پر ہوگی اور میں کہوں گا آپ کس سے بات کر رہے ہیں لیکن اسے اس طرح پیش کیا جا سکتا ہے جیسے آپ کس سے بات کر رہے ہیں یا آپ کس سے بات کر رہے ہیں اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ آپ اپنے اندر کی بے چینی کو کنٹرول نہیں کر سکتے تم ان لوگوں کے ساتھ باہر جانا پسند کرتے تھے جن سے اب ڈرتے تھے مت پکار آپ کے عدم تحفظ کی وجہ سے سوشل میڈیا میں آپ کے عدم تحفظ کی وجہ سے ہر چیز سے ڈرتا تھا میں اکثر خوف میں رہتا تھا جب آپ جانتے تھے کہ اس کے پاس سائیکل تھی لہٰذا جب وہ اوپر بڑھ رہا تھا وہ بہت کم غیر محفوظ تھا اور مجھ پر بہت کم چیزوں کا الزام لگاتا تھا لیکن جب وہ ڈاؤن سوئنگ واچ پر تھا تو ہاں یہ کچھ بھی تھا کیونکہ اگر میں آپ کو میسج کر رہا تھا تو وہ پریشان ہو جائے گا کیونکہ میں مسکرا رہا تھا کیونکہ میں ٹیکسٹ کر رہا ہوں اور میں مسکرا رہا ہوں کسی آدمی یا کسی اور چیز کو ٹیکسٹ کرنا کیا آپ کو تھرموسٹیٹ یاد ہے وہ چلو تھرموسٹیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ایک تھرموسٹیٹ کی کہانی ہے وہاں لہٰذا میرے شوہر ایک مرد کے آدمی ہیں جی ہاں تو میرا شوہر ایک مرد کا آدمی ہے اگر وہ اسے ٹھیک نہیں کر سکتا تو اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا وہ سب کچھ اکٹھا کر سکتا ہے اور کچھ بھی ٹھیک کر سکتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اسے کیسے کرنا ہے تو میں اسے صرف یہ کرنے کے لیے کہتی تھی لیکن پھر بھی میں ابھی ہر وقت ایسا کرتی ہوں اگر میرے شوہر پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ اسے کیسے کرنا ہے تو مجھے ایک اور نیا ہنر سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے یہ صحیح ہے تو ایک چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس ایک تھرموسٹیٹ تھا جو میرے خیال میں واقعی کافی ترقی یافتہ تھا لیکن یہ تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے حالانکہ یہ واقعی اس وقت موجود تھرموسٹیٹ کی طرح زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا لیکن میرے لیے میں اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ سے باہر ایک چھوٹے سے ڈائل تھرموسٹیٹ کی طرح چلا گیا تھا اور ہمارے پاس ٹائمر پر یہ تھرموسٹیٹ تھا اور لہٰذا میں اسے کہتا تھا کہ اگر سردی ہو تو درجہ حرارت کو تبدیل کریں اور ہمارے پاس ایئر کنڈیشننگ سسٹم بھی تھا جو ہم نے اس کے لیے نصب کیا تھا اور وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اسے کس طرح استعمال کرنا ہے تو مجھے اسے 2 ڈگری تک موڑنے کے لیے 5 منٹ خرچ کرنے کی ضرورت کیوں ہے جبکہ وہ صرف 10 سیکنڈ میں یہ کام کر سکتا ہے اور اس لیے میں اسے تھرموسٹیٹ کرنے کے لیے کہوں گا چنانچہ ایک دن وہ کام سے گھر آیا اور میں نے مجھ سے کہیں زیادہ کام کیا اس لیے میں اکیلے ہی گھر پر تھا وہ کام سے گھر آیا تھا اور میرے پاس تھا گھر میں بہت گرمی تھی یا بہت سردی تھی لہٰذا میں 5 گھنٹے انتظار نہیں کروں گا جیسے میں ایک عورت ہوں لیکن میں اب بھی چیزیں کر سکتی ہوں اس لیے میں تھرموسٹیٹ کے پاس گیا یہ برا لگتا ہے میں ایک عورت ہوں لیکن میں اب بھی چیزیں کر سکتی ہوں نہیں وہ بہت سی چیزیں ہاں اور میں نے یہ بات بالکل مذاق میں کہی کیونکہ میری طرح میں نے بھی اسے نیلے رنگ کے کام کرنے دیے اب جانتے ہیں فکسنگ اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں اور میں جانتا ہوں کہ ایسی خواتین ہیں جو چیزوں کو ٹھیک کرنے میں واقعی اچھی ہیں میں بالکل نہیں ہوں میں مکمل طور پر صنفی دقیانوسی سوچ کی طرح ہوں ملازمتوں کا انتخاب کریں میں آئیکیا کی کتاب کی شیلف بھی جمع نہیں کر سکتا میں صرف اپنی چیز نہیں ہوں
कुछ ख्वातीन हैं, यकीनन बहुत सारी ख्वातीन हैं जो कर सकती हैं, लेकिन वैसे भी मैं 5 घंटे इंतजार नहीं करना चाहती थी आज के लिए थर्मोस्टेट को ठीक करने के लिए जो कुछ भी था। इसलिए मैं वहां गया और मैं, अब जानते हैं, चारों तरफ छेड़छाड़ की। मुझे ऐसा करने में बहुत वक्त लगा, लेकिन मैंने दर्जा हरारत तब्दील कर दिया। ठीक है, इसने अपना जहन खो दिया क्योंकि वाज़े तौर पर मेरे पास थर्मोस्टेट पर दर्जा हरारत तब्दील करने के लिए घर में एक आदमी था, लिहाजा में और उसके बेटे जैसी दीगर चीज़ें थी, लिहाजा इसके पिछले रिश्ते से एक बेटा है और बच्चा। एक मौके पर मुझे नहीं मालूम था कि क्या हुआ था, लेकिन मैंने टॉयलेट पेपर लगा दिया जिसमें फ्लैप ऊपर आ रहा है। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मेरे 4 साल से कम उम्र के 3 बच्चे हैं, मुझे परवाह नहीं है कि टॉयलेट पेपर किस तरफ जाता है। लेकिन जब मेरे हाथों में इजाफी वक्त था तो मुझे टॉयलेट पेपर एक ख़ास रास्ते पर जाना पसंद था, लिहाजा हमारे मरकज़ी बाथरूम में, हमारे घर में टॉयलेट पेपर गलत रास्ते पर था और इसलिए मैंने ये सब सुना कि मैं कभी भी टॉयलेट पेपर को इस तरह नहीं लगाऊंगा और जैसे कास को टॉयलेट पेपर करना नहीं आता। और जाहिर है, एक बार फिर जाहिर है कि घर में एक आदमी था, वो बहुत गैर महफूज था। तो थर्मोस्टेट, टॉयलेट पेपर तकरीबन 1 हफ्ता बाद कैसल बाथरूम से बाहर आता है और चला जाता है। वालिद, मैंने सोचा कि टॉयलेट पेपर कैसे पहनना है, मैं आपको बताना भूल गया था और फिर मैं देख रहा था और फिर उन्होंने उसकी बातें खा ले, लेकिन यह अदम तहफ़्फ़ुज़ था जो कैथरीन कभी नहीं करती है। ये कुछ ऐसा है जो कैथरीन मुख्तलिफ तरीके से करती है, लिहाजा एक बार जब आप टॉयलेट को साफ़ करते हैं तो मैंने कुछ भी तब्दील कर दिया। जब आप टॉयलेट को साफ़ करते हैं तो आप सीट पलट देते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि अगर आप पलट नहीं रहे हैं तो आप उसे गलत कर रहे हैं, और आमतौर पर मैं उसे गलत कर रहा हूँ। मैं इस टॉयलेट सीट को आज तक नीचे रखूंगा। मुझे लगता है कि अब मुझे वाकई परवाह नहीं है, लेकिन सालों तक मैंने इस बात को यकीनी बनाया कि मैं टॉयलेट सीट को नीचे रखूं क्योंकि वो परेशान था। टॉयलेट की सीट नीचे क्योंकि वो चीख रहा था, इसलिए मैंने अपना दिमाग खो दिया। टॉयलेट सीट ऊपर है, बकवास में क्या है। और मैं ऐसा हूँ, लेकिन देखो बैत अलखला कितना साफ है। जैसा कि क्या आप अब क्यों करते हैं? क्या कोई और वजह है कि आपको लगता है कि टॉयलेट सीट ऊपर हो सकती है? यहाँ हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जब अदम तहफ़्फ़ुज़ आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है तो आप लाखों मुख्तलिफ वजूहात की बना अशारिया पर अपनी हकीकत खुद बना लेंगे। वो धोखा क्यों दे रही है ये नंबर 1 होगा, ठीक है, लेकिन आप काफ़ी अच्छे क्यों नहीं हैं, ये बहुत बड़ा है। वो आपके साथ राब्ता क्यों नहीं कर रही है कि आप शादी को इस तरह क्यों आगे नहीं बढ़ा सकते जिस तरह आप चाहते हैं कि आप कभी काम ना करें। आदम तहफ़्फ़ुज़ की तरह कुछ भी अच्छा नहीं। कुछ मेरा मतलब कुछ ऐसी आम चीजें हैं जो लोग कर रहे हैं, जो हम हर वक्त अपने फोन पर फ्रेंड फाइंडर को जानते हैं। तो क्या आपको याद है जब फ्रेंड फाइंडर को ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं लगता है? मेरे खुदा में भूल गया था कि वो वाज़े वजूहात की बना पर मुझसे दूर रहना पसंद करती थी और चली जाती थी। वो मेरे खुदा में इसके बारे में भूल वो वाज़े वजूहात की बना पर मुझसे दूर रहना पसंद करती थी और ड्राइविंग करके एडमिंटन के स्पार्क हार्लाक पार्क में जाती थी, और जब वो वहां होती तो वो सोचती और सुनती और खुदा किसी और चीज के साथ पूजा करती और वहां जाने की कोशिश करती थी और कोशिश करती थी कि अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आप किसी और जंगली जानवर की तरह देखेंगे, मुझे इससे मोहब्बत है। वहाँ अमन होगा। अगर आप खुशकिस्मत हैं तो आप एक और जंगली जानवर की तरह देखेंगे जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं सिर्फ हाँ लेकिन पार्क। लेकिन मिसाल के तौर पर पार्क बिल्कुल इसी जगह पर नक्शे पर जाहिर नहीं होगा, वो दूसरे औकात में किसी दूसरी जगह पर नजर आती है, क्योंकि आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम दीगर ख्यालात को हुआ दे रहे हैं कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं, और मैं सिर्फ इसमें इजाफा करना चाहता हूँ। और हम आज तक नहीं जानते कि मैं आज तक ये क्यों दिखाऊंगा कि मैं वहाँ से थोड़ा सा दूर था जहाँ मैं वाकई जानता था, लेकिन ये बंद था। लिहाजा हम अपने घर के स्प्लैश पार्क के बिल्कुल करीब रहते थे और इसलिए वो मुझे मैसेज करते थे और कहते थे कि आप और मैं कहाँ हैं, जैसे मैं घर पर हूँ, और वो इस तरह थे। क्या आपको यकीन है? और मुझे लगता है कि हाँ वो आपकी तरह हैं, और फिर वो मुझे एक स्क्रीनशॉट दिखाएगा जिससे पता चलता है कि मैं स्प्लैश पार्क में हूँ, तो मैं स्प्लैश पार्क में क्यों रहूंगा? जाहिर है धोखा। जाहिर है कि मैं दिन के वक्त में बच्चों के साथ स्प्लैश पार्क में था, जैसे मैं अपने बॉयफ्रेंड से बगैर बच्चों की तरह स्प्लैश पार्क में मिलने जा रहा हूँ। लिहाजा हाँ मुझे ये याद है, और इस तरह ये एक ऐसी सूरत हाल है जहाँ ये मंतकी है कि आप परेशान क्यों होंगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मुझे वाकई इसको साबित करना पड़ता था क्योंकि हमारे पास दोनों पर दोस्त मौजूद थे। इसके अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से हमारे फ़ोन ठीक थे, लिहाजा अगर आप मुझे ट्रैक करने जा रहे हैं तो मैं आपको ट्रैक करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ट्रैक करूंगा। इस वक्त मैंने कहा था कि अगर वो मुझ पर इतना इल्ज़ाम लगा रहा है तो क्या हो रहा है, और वो धोखा नहीं दे रहा था, लेकिन मैं मुसलसल इसकी लोकेशन चेक करता रहूंगा। तो मैंने इसे दिखाया, मैंने कहा मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूँ। लिहाजा हमारा जिम सड़क के इस पार था, जैसे एक मुनशियात की दुकान, एक और जिम, वहाँ बहुत सी चीज़ें हैं। और मैं कहूँगा, मैंने इसे एक स्क्रीनशॉट भेजा और मैंने कहा बस अब जानते हैं, मैं जानता हूँ कि आप अभी एक क्लास पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके फ़ोन से पता चलता है कि आप लंदन मुनशियात की सड़क पर हैं। और वो ऐसा था, लेकिन मैं नहीं हूँ। और मैंने कहा मैं जानता हूँ कि आप नहीं हैं, लेकिन ये वही है जो दोस्त तलाश करने वाला करता है। कभी कभी ये चाहता था, ये सिर्फ 100 मीटर किसी और चीज़ की तरह था। ये वो चीज़ है जो आपको मालूम है कि अब हम सब इससे अलग हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि अदम तहफ़्फ़ुज़ अहमकाना है। हम सब समझते हैं कि ये कहाँ से आता है। हम सब समझते हैं कि अब मैं जो करना चाहता हूँ वो ये है कि अब मैं क्या करना चाहता हूँ वो ये है कि अब क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार शख्स हैं, और ये सिर्फ मर्दों के साथ नहीं बल्कि बीवियों के साथ भी होता है काम, लेकिन इनकी कुछ बीवियां बहुत गैर महफूज हैं
और उन सब के पास मामलात ठीक नहीं हैं, लेकिन अदम तहफ़्फ़ुज़ में आपको सबसे पहले इस परेशानी से निपटने की ज़रूरत है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप खुद ब खुद अपने दिमाग को मुख्तलिफ समतों में जाने दे रहे हैं और फिर आप फितरी तौर पर उसकी हिमायत करने के लिए मनफियत का इस्तेमाल करेंगे और अपने जहन में महसूस होने वाली मुकम्मल सच्चाई का बैक अप लेंगे। दाइन लिहाजा जब मैंने अदम तहफ़्फ़ुज़ से निमटना सीखा तो मुझे इस परेशानी से निमटना सीखना पड़ा जो मैं वाकई महसूस कर रहा था कि आपको खोना शायद सबसे अहम होगा। इस वक्त ये असल में किसी के आपके साथ होने का ख्याल नहीं था। अगर आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं इसे खोने जा रहा हूं और फिर आप इस इफरीत का पीछा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि इसका उल्टा असर होता है, लिहाजा जब वो मुझे खोने के बारे में फिक्रमंद होता है तो अगर आप और आप जानते हैं कि इसका उल्टा असर होता है, लिहाजा जब वो मुझे खोने के बारे में फिक्रमंद होता है तो अगर आप गैर महफूज महसूस कर रहे हैं तो आप अपने साथी को खोने के बारे में फिक्रमंद हैं, तो आप फिक्रमंद हैं कि वो दूसरा शख्स आपके साथी को दूर ले जाएगा, कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिर रद्द अमल में जब आपका रद्द अमल गुस्से में होता है, रद्द अमल आप दरअसल अपने साथी को मजीद दूर धकेल रहे हैं। तो मैंने इसकी वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा किया, क्योंकि मुझे इतना दूर धकेल दिया जाएगा कि फिर मैं सोच रहा था, ठीक है, क्या वो मुझसे मोहब्बत करता है, क्या वो मुझे पसंद करता है, इसे क्यों लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ। मैं इससे पूछता था, मैंने कहा, क्या तुम भी मुझे पसंद करते हो, हम शादी क्यों करते हैं, क्योंकि वो मेरे लिए माकूल था, वो मेरे हर काम के बारे में गैर महफूज था, हर चीज़ पर सवाल उठाया गया था। मैंने कहा, क्या आप मुझे पसंद करते हैं, और इसलिए गुस्सा करने के अमल में वो इसे सानवी जज्बात कहते हैं। लिहाजा अगर आप परेशान महसूस कर रहे हैं तो आप गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, और आप गुस्से में हैं तो आप अपने साथी को खोने के बारे में फिक्रमंद हैं, लेकिन आप लफ्जी तौर पर एक दीवार खड़ी कर रहे हैं जो आप और आपके साथी के दरमियान जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे एक दीवार बना रहे हैं और अपने साथी को इस हद तक धकेल रहे हैं। जब आप 100% इस तरह काम कर रहे हैं तो आप अपने साथी को खो सकते हैं, और अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो जाहिर है कि धोखाधड़ी नंबर 1 है। 100%। और अगर आप इसके बारे में सोचते हैं जैसे धोखाधड़ी वाज़े तौर पर अदम तहफ़्फ़ुज़ की सबसे बड़ी वजह है, ख़ास तौर पर अगर किसी किस्म की धोखाधड़ी हुई है तो मुझे परवाह नहीं है। अगर आप फहश के बारे में बात कर रहे हैं, अब जानते हैं फेसबुक पैगाम वाज़े तौर पर डेटिंग ऐप, और जाहिर है कि अगर आप पूरी तरह से चल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर तुम क्या कर रहे हो, आप अपने साथी को दूर धकेल रहे हैं। आज हम यहाँ अखलाकियात की बात नहीं कर रहे हैं, हम धोखाधड़ी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मैं सिर्फ इस बात की हिमायत करना चाहता हूं जो कि अगर आप अपने साथी को चाहते हैं, जैसा कि आप शादी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपके ख्याल में आप यही करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथी को दूर धकेल रहे हैं, उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि मैं कहीं और महफूज महसूस कर सकता हूं। ये मर्द औरत लड़के भूल जाते हैं कि सिर्फ ख्वातीन को महसूस करने की ज़रूरत है। अगर आप उन्हें दूर धकेल रहे हैं तो वो कहीं और जा रहे हैं, तो आप उन पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं। लेकिन अब का ज़्यादा इम्कान है कि ज़्यादातर लोग धोखा नहीं दे रहे हैं, और अपने ऐसा इस तरह से किया है जिसका मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब सिर्फ दरवाज़ा खोलते हैं। आप जानते हैं कि ये कभी आपकी गलती नहीं है। मैंने पिछली बार उसके बारे में बात की थी जब आपका साथी धोखा देता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे मैंने धोखा नहीं दिया। लेकिन मेरा मतलब है, मैं देख सकता हूं कि शायद कोई ऐसा करेगा क्योंकि मैं आपके साथ महफूज महसूस नहीं कर रहा था, और शायद मैं हूं, और मैं सिर्फ कियास आराइयां कर रहा हूं क्योंकि मैं धोखाबाज नहीं हूं। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी जब कोई धोखाबाज नहीं होता है, यहाँ तक कि जब आप धोखेबाज होते हैं, तो आप महफूज महसूस नहीं करते। आप इस शख्स से अलहदगी नहीं चाहते हैं, आप इस शख्स को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके बच्चे हैं, रहने की हर तरह की वजूहात हैं, लेकिन आप किसी और के साथ महफूज महसूस करना चाहते हैं। मैं उसका जवाब पेश नहीं कर रहा। और इससे आपको यह हकीकत दरपेश है कि आप दोबारा होने के लिए गैर महफूज हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आपकी बीवी ने आपको धोखा दिया है तो ये ठीक है, और उसकी वजह यह कि आप इस तरह काम कर रहे हैं, ना कि ये आपकी बीवी का मसला है कि आपने धोखा दिया है। लेकिन इसके बरक हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपकी बीवी ने आपको धोखा दिया है तो ये ठीक है, और उसकी वजह यह है कि आप इस तरह काम कर रहे हैं। ये अभी आपकी बीवी का मसला है कि आपने धोखा दिया है, लेकिन इसके बरक्स हाँ, जिसने भी धोखा दिया है और इस तरह की खयानत में जो कुछ भी हो रहा है वो इस तरह की बेवफाई है, तो हम इसका जवाब पेश नहीं कर रहे हैं। ये कभी ठीक नहीं है, लेकिन आपको अच्छी तरह सोचना होगा, क्या आपका साथी मजीद दूर है। और मैं अदम तहफ़्फ़ुज़ के बारे में एक और बात भी कहना चाहता हूँ। लिहाजा ये अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जो यहाँ मसला है। तो हाँ, आप महफूज महसूस करना चाहते हैं, और हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि हमने इसे मजीद सिक्योरिटी बनाने की इजाज़त देने के लिए क्या किया। तो हाँ, आप महफूज महसूस करना चाहते हैं, आप गैर महफूज महसूस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये महसूस करने का एक खौफनाक तरीका है। ठीक है, जी हाँ, ये लेकिन ये अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जो मसला है, ये वो रद्द अमल है जो अदम तहफ़्फ़ुज़ से आता है जो एक मसला है। अगर आप गैर महफूज महसूस कर रहे हैं तो हमें इससे निपटने की ज़रूरत है। आपको अपने साथी के साथ बातचीत करने के काबिल होने की ज़रूरत है कि आप किस तरह गैर महफूज महसूस कर रहे हैं, ताकि आपका साथी आपके साथ इन अदम तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान काम करने में आपकी मदद कर सके। जो आपका साथी मिसाली तौर पर आपसे मोहब्बत करता है और नहीं चाहता कि आप गैर महफूज महसूस करें, मैं नहीं चाहता था कि आप गैर महफूज महसूस करें, लेकिन जब वो गुस्से के साथ मुझ पर आया तो मैं गुस्से और दिफा के साथ वापस आ गया। ठीक है, क्योंकि आप धोखा नहीं दे रहे हैं, और इसलिए हम एक हल के साथ आए कि ये हमारे लिए काम करता है और ये दूसरे लोगों के लिए काम करता है जिनकी हमने तरबियत की है। क्या हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं? जी हाँ, चलो ये करते हैं। तो आप क्यों नहीं कर हाँ, लिहाजा ये एक के बाद एक इल्ज़ामात में से एक था, और मुझे लगता है कि ये था, मैं किसी रोशनी में फंस गया था या कुछ हुआ था। मैं ट्रैफिक में फंस गया और मैं उसके पीछे चंद मिनट वह के लिए पहुंच रहा था, तो वो मेरे सामने गाड़ी चला रहा था। सबसे पहले वो तेजी से गाड़ी चलाता है और मैं लाइट पर फंस गया, या शायद मैं किसी स्टोर पर रुक गया, मुझे याद भी नहीं। लेकिन मैं अब से चंद मिनट पीछे था और उसके जहन में यह ख्वाब था कि मैं किस तरह किसी और के साथ सो रहा हूँ।
क्योंकि जब मैं जिम में पहुंचा तो चंद मिनट बाद एक मर्द इसी वक्त जिम में आया और उसने सोचा कि वो मेरी भलाई अगर वो सड़क के किनारे मिल और गंदा काम करे ताकि आपको पता चल जाए कि वो मुझे धोखा दे रही है, कि वो मेरे कुछ सोचे बगैर इसके साथ सो सकती है। लेकिन वो दोनों देर से चल रहे थे और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये इस सूरत हाल के बाद हुआ था और वो बहुत गुस्से में आ गया था और इसलिए मैंने कहा कि सुनो, मैं एहतराम के साथ इस इल्ज़ाम से बीमार हूँ। मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि जो चीज़ें आप कर रहे हैं वो चीज़ें जो आप सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। और ये हमारे पास पहले से ही फ्रेंड फाइंडर ऐप, हम पहले ही जैसा कि हम जाने की कोशिश कर रहे थे हल तलाश करने, लेकिन हम इसका हल तलाश नहीं कर सके क्योंकि फ्रेंड फाइंडर ने असल में चीज़ों को बदतर बना दिया, जैसा कि हमने चंद मिनट पहले बात की थी। लेकिन मैंने कहा अगर आप मेरे पास इस हकीकत के साथ आते हैं कि आपको डर लग रहा है, लिहाजा हम उसे ठीक करने में कामयाब हो गए ताकि वो असल में गुस्से में ना हो, क्योंकि उसके पास गुस्सा करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं कुछ नहीं कर रहा था लेकिन वो खौफजदा था। मैं चीख रहा था क्योंकि मैं खौफजदा था। जी हाँ, वो खौफजदा था। एक बार फिर मुझे खोने से डरते हैं, मुझसे बेवफाई से डरते हैं, इन चीज़ों से डरते हैं जो हकीकत में नहीं हो रही थी। लिहाजा मैंने कहा कि अगर आप इल्ज़ाम लगाने से पहले मेरे पास आते हैं और सबसे पहले मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इन लम्हात में ऐसा ही होता है। तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तुम्हें ऐसा था जैसे तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत है और मुझे ये जानने की ज़रूरत है कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, क्योंकि जब तुम गुस्से में आते हो और चीखते हो तो मुझे डर लगता है और तुम जानते हो कि पागल ट्रेन में, यहाँ तक कि एक अच्छे लहजे के साथ भी सिर्फ तसल्ली बख्श है कि आप किससे बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि अच्छे लहजे में भी आप किससे बात कर रहे हैं। हाँ, और मैंने कहा कि अगर आप मेरे पास आएं और मुझसे कहीं कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं लेकिन फिर मुझसे ये भी इजहार करते हैं कि आपको डर लगता है कि आप खौफजदा हैं, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको पकड़ ओढ़ेगा दिल और मैं इस अदम तहफ़्फ़ुज़ में तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मैं इस बात की जमानत देता हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं अब पर इल्ज़ाम लगाए बगैर तुम्हारे साथ मिलकर काम कर सकता हूँ ताकि हमें अपने दरमियान यह खलीज पैदा न करनी पड़े और मैं वाकई मदद कर सकूँ। आपने कहा कि यह काम नहीं करेगा और मैंने कहा कि यह काम करने वाला नहीं है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये उन लम्हात में से एक है जिसमें मैंने पिछली किस्तों में से एक में पागल ट्रेन के बारे में बात की थी और कैसे अगर आपके शौहर आपकी बीवी जो भी पागल ट्रेन में सवार हो रहे हैं और आप देखना शुरू कर सकते हैं कि ट्रेन पटरियों से उतरने वाली है तो वो पटरियों पर नहीं उतरते। ट्रेन से दूर रहने वाली ट्रेन मजबूत और मुस्तहकम रहे, और इसलिए मैंने इससे कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं मजबूत हूँगा और मैं अपनी जमीन पर खड़ा रहूंगा और मैं आपको इससे गुजरने में मदद करूंगा। और मैंने कहा कि मुझ पर भरोसा करें, मुझसे वादा करें। लिहाजा हम थोड़ा सा आगे पीछे चले गए क्योंकि उन्होंने कहा कि यह काम करने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन देखो ये बड़ा कदम था। ये हमारे लिए एक बड़ा कदम था। लिहाजा मैं कैथरीन की तरफ रुजू करता और कहता मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन मैं गैर महफूज महसूस करता हूँ, और अगर आप कर सकते हैं तो अब हम जानते हैं कि अगर आप बद को हटा सकते हैं और अगर आप सिर्फ इसको अलग कर सकते हैं तो वो मेरे पास वापस आएगी और वो कहेगी ठीक है क्या हो रहा है, मुझे बताएं कि क्या हो रहा है। और वो मुझे इसमें से गुजरा। अब इसका मतलब ये नहीं था कि मैं ठंडा था, उसका मतलब ये नहीं था कि मैं खुद ब खुद तनाव से आज़ाद था। मैं झपकने के लिए तैयार नहीं था, रोने के लिए तैयार था या कुछ भी करने के लिए तैयार था। लेकिन इसने मुझे कंट्रोल में रहने की इजाज़त दी। लिहाजा अगर दोनों लोग काबू से बाहर हैं तो आपको उम्मीद नहीं है। मेरा मतलब है कि शादी में आपको अब भी उम्मीद है, क्योंकि ये बहुत होता है, लेकिन आपको दुनिया में इस बहस को मुनासिब वक्त और सिविल तरीके से हल करने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आप में से किसी को महज़िब रहने की ज़रूरत है। लिहाजा वो अब भी हो सकता है काबू से बाहर था, लेकिन उसने मुझे दे दिया तो मुझे अपने पाँव लगाने पड़े। तो जब उसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन मुझे डर है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन मैं गैर महफूज महसूस करता हूँ, मैं अपने पाँव लगा सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि ठीक है मैं तैयार हूँ, ये सही है और मैं उसकी मदद करने के काबिल था। और उसके बाद आप जानते हैं मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आप क्या करते हैं, लेकिन अगर आप एक मर्द हैं और आप उसके साथ जिदोजहद कर रहे हैं तो ये जीने का एक खौफ, जैसा कि कैथरीन चंद मिनट पहले बात कर रही थी, ये जीने का एक खौफनाक तरीका है। ये किसी भी मस्बत जज्बात, कोई खुशी, कोई जोश, कोई हंसी, कोई तफरी की इजाजत नहीं देता है। लफ्जी तौर पर जिस लम्हे आपके पास वो होते हैं और फिर ये अदम तहफ़्फ़ुज़ आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, ये इसे फाड़ देता है, इसे आपसे दूर कर देता है। लिहाजा अगर आप इसके साथ जिदोजहद कर रहे हैं तो वेबसाइट से काम से सिर्फ एक पैगाम भेजें। मैंने बेचीनी के बारे में कुछ जबरदस्त तरबियत हासिल की है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, यह मुश्किल है क्योंकि यह है कि मैंने अपने आप को इस ख्याल से निपटना सिखाया कि कैथरीन किसी दूसरे शख्स के साथ क्या कर रही है। ये इस पूरे सफर से गुजर रहा है कि वो किसके साथ हो सकती है और उसका डिक कितना बड़ा है, जैसे ये बुरा है, लेकिन मैंने इससे निपटने के काबिल होना सीखा कि मैं अंदर क्या महसूस कर रहा था और मैं अपने अंदर क्या महसूस कर रहा था। मैंने ये काम एक बेहतर तरीकाकार अपनाया जो मैं आप लोगों को देता हूं, लेकिन मैंने ये काम रियलिटी शोज देखकर किया और जैसे इसने मुझसे शो के बारे में सवालात पूछे और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे खुदा इस वक्त अपना जहन न खोई वो रियलिटी शो की सूरत हाल के बारे में कुछ सोच रहा है और उसके जहन में वही काम कर रहा हूं जो मैं अगले सोफे पर बैठा हूं। आपके लिए ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, ये कितना इफरीत अदम तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, ये सही है। और लिहाजा आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि आप जानते हैं कि ये दूसरी तरफ बहुत अच्छा है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि मुझे याद है जब हम फ्रीडक्टन में थे कुछ हम नहीं जानते। वो रियलिटी शो की सूरत हाल के बारे में सोच रहा है और उसके जहन में वही काम कर रहा हूँ जो मैं आपके बगल में सोफे पर बैठा हूँ। मैं कैसे हो सकता हूँ कि मैं कितना खौफजदा अदम तहफ़्फ़ुज़ हो सकता हूँ? और इसलिए आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि आप जानते हैं कि ये दूसरी तरफ बहुत अच्छा है जिसमें आप जानते हैं। ये सही है। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि आप जानते हैं कि ये दूसरी तरफ बहुत अच्छा है जिसमें आप जानते हैं कि मुझे याद है जब हम फ्रीडक्टन में थे वहाँ कुछ हम नहीं जानते थे। हमारे पास किया था, हमें बाहर एक खरगोश मिला, शायद यही वो था, चबा हमारे कैमरों में मौजूद तारों को चबाया, हमारे वीडियो कैमरे, बच्चों के कमरे और लिविंग रूम में लगे कैमरे और इस तरह की चीजें, हमारे बेडरूम में नहीं, अच्छी कोशिश करें वगैरह। और सिर्फ एक तार। जी हाँ, सिर्फ कैमरे के लिए तार ताकि हम अपने बेटे पर फीड हासिल ना कर सकें
और मेरा दिमाग खुद ब खुद वही करता है जो वो आम तौर पर करता है। सबसे पहले तो ये ठीक है कि उसने तार क्यों काट दी, लेकिन जब आप रद्द अमल बमुकाबला रद्द अमल को समझते हैं तो आपकी परेशानी आपको पकड़ नहीं लेती और आपको खौफ की तरफ धकेलती है और आप अदम तहफ़्फ़ुज़ को हुक्मरानी करने देती हैं, तो आप अक्ली और सही सोचना शुरू कर देते हैं जब आप अक्लमंद होते हैं। और जब आप अक्लमंद हो रहे थे तो आपने मुझसे कहा, तो उन्होंने कहा कि जब हमने देखा कि हमारे बच्चे के बेडरूम में हमारे सिक्योरिटी कैमरे पर तार कटी हुई है तो मैं वाकई हैरान रह गया कि तार सही तरीके से कट गई थी और हम भूल गए कि हमारे पास एक खरगोश था। हमने एक खरगोश को बचाया था और हमारे पास ये खरगोश था, लिहाजा वाहिद मंतिकी वजाहत यह है कि खरगोश ने इसे चबाया था, लेकिन ये असल में था। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक कामिल किट की तरह लग रहा था, लिहाजा ये वाकई बहुत खौफजदा था। उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एक खरगोश था, वरना ये एक खरगोश था जो इससे भी ज्यादा खौफनाक था। लेकिन वैसे भी इसने मुझसे कहा कि मैं अब से झूठ नहीं बोलूंगा। मैं इस वक्त वाकई फिक्रमंद हूँ कि आपने तार काट दी और मुझे याद है जैसे मैं बहुत माजरत खा हूँ। मैंने कहा मुझे बहुत अफसोस है शहद, जो होना चाहिए ये महसूस करने का एक खौफनाक तरीका होना चाहिए। और मैंने इससे कहा कि ये इस तरह साबित हुआ कि मुझे ऐसा नहीं लगता था जैसे मैं अपने बेटे के बेडरूम में किसी दूसरे शख्स के साथ कुछ करने जा रहा हूँ और मैं इसे कैमरे से हटाना चाहता था, तो मैं उसे नहीं काटूंगा। इसे ना काटे। जी हाँ, और मैं भी अच्छा था कि क्या आप ये बेडरूम में नहीं करेंगे जहाँ कैमरा नहीं है और बिस्तर भी एक छोटे से फायर ट्रक बेड से बहुत बड़ा है। लेकिन ये वो चीज़ है जिसे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। हाँ, और हम कह सकते हैं कि मैं एक और बात हाँ कहना चाहता हूँ और हम कह सकते हैं कि अब जहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं ऐसा करने जा रहा हूँ तो मैं उसे अनप्लग कर दूंगा, जहाँ आमतौर पर 5 साल पहले की तरह। अगर मैंने कहा कि अगर मैं आपको धोखा देने जा रहा हूँ तो मैं कैमरे को अनप्लग कर दूंगा, जहाँ मैं हो सकता हूँ वो मेरे खुदा, वो पहले ही इसके बारे में सोच चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। अदम तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ आपको जाने पर मजबूर करता है, ओ मेरे खुद। इसने ऐसा क्यों सोचा? बकवास की पुष्टपनाही करता। अब ये वाकई अहम है क्योंकि ये सिर्फ मेरा मतलब है, मेरे ख्याल में सिर्फ 6 माह पहले था। लेकिन अदम तहफ़्फ़ुज़ का अब इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा फितरी है, ठीक है, और ये अंदर आता है, लेकिन ये अब मुझे पकड़ नहीं सकता। अगर मुझे कोई रद्द अमल आता है, अगर मेरा लहजा बंद हो जाता है, अगर मैं गलत अल्फाज कहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे पूरा यकीन है कि इसका इहाता किया जाएगा। बहुत अच्छा है कि ये सब कंट्रोल में है और मैं जवाब देता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं मंतिकी हूँ क्योंकि मैं अपने पेट में इस गड़े से निमट सकता हूँ, लेकिन हम वाकई हर चीज़ के साथ खिले हैं। इस बात को यकीनी बनाना आसान है कि हम दोबारा कभी पीछे न जाएं। आज ये एक तवील वाकया है, लेकिन हम उसे मुख्तसर करने जा रहे हैं और हम अगली किस्त में आपसे 1 सेकंड मिलेंगे।